everyone, my name is Anudeep. Welcome to GoPrep. I am a physics tutor at GoPrep. So आप लोगों का GTSE स्लॉट 3 का एग्जाम हुआ है. कैसा गया आप लोगों का एग्जाम? डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि एग्जाम कैसा गया और हाउ वाज द लेवल, कैसा लगा आप लोगों को. बहुत टफ था या मॉडरेट था या बहुत इजी था? आई होप बहुत अच्छा गया होगा एग्जाम. बट अगर स्टिल आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए हम ये डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशन विद द फिजिक्स सेक्शन. So here is the first question. Okay, the xt graph shown in the figure represents, क्या represents कर रहा है? xt graph. xt graph यहाँ पे displacement time graph given है, right? Displacement time graph is given to us. So let's see what can we interpret from this graph. As you can see, from 0 t is equal to 0 up till t is equal to t1, displacement is continuously increasing at the same rate. Why? Because it is straight line. So straight line means इसका slope क्या है? Constant है. इसका slope constant है तो slope क्या बताता है st ग्राफ का? Displacement time ग्राफ का slope क्या बताता है? Velocity बताता है. Exactly. तो velocity क्या है? Constant है. Velocity is constant till t1. What after that? उसके बाद displacement is not changing. So that means यहाँ पे velocity क्या होना चाहिए? Velocity is 0 क्योंकि displacement change ही नहीं हो रहा है. There is no change in position. So after t1 displacement is not changing. So that means velocity is 0. So कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? So let's see the first option. Constant velocity. Is this not right? Right? Velocity of the body is continuously changing. Yes, but एक condition इसने नहीं दिया है कि t1 टाइम के बाद वो velocity 0 है. So this is not all correct as well. So instantaneous velocity represent कर रहा है? No, it is representing change in displacement with respect to time. So this is also not correct. Body travels with constant speed up to time t1 and then stops. So this is the correct answer for us. It was very easy, right? It was very easy question. सबका सही हुआ होगा. क्वेश्चन आंसर क्या है? D है. So let's move to the next question. Next question is bullet of mass 100 gram is fired from a gun whose mass is 20 kg. अपने पास क्या है? गन है एंड फायर कर रहा है. गन एक बुलेट फायर कर रहा है. कितनी वेलोसिटी से फायर कर रहा है? 100 मीटर पर सेकेंड से फायर कर रहा है. ओके, सबसे पहले व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन एंड द बुलेट? दोनों क्या थे? रेस्ट पे थे. तो इनिशियली किसी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, राइट? और फाइनली क्या हो रहा है? जब बुलेट गन से बाहर निकलेगा कितनी वेलोसिटी से? 100 मीटर पर सेकेंड से. तो आपको बताना है कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन क्या होगा, है ना? आप लोगों के एयर गन तो यूज किया होगा. तो एयर गन हम जब फायर करते हैं तो हमें पीछे की तरफ क्या लगता है? जर्क लगता है ना? तो वो पीछे की तरफ मूव करती है गन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट. तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, तो इसको कैसे स्टडी करेंगे? इसको हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से. एज यू नो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग. कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है. फोर्स कौन लगा रहा है? गन लगा रहा है बुलेट के ऊपर. तो बुलेट भी क्या करेगा? गन के ऊपर फोर्स लगाएगा. बट बाहर से एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है. नेट फोर्स क्या है? इंटरनल नेट फोर्स तो 0 ही होता है ना? एक्सटर्नल नेट फोर्स क्या है? 0 है. So external force is equal to क्या होता है? Change in momentum upon time. So delta p that is change in momentum क्या हो जाएगा? 0. So conservation of momentum को use करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे to find the velocity of the recoil velocity of the gun. Fine. So what is the initial momentum? As we have discussed, दोनों का velocity initially क्या था? 0 था. तो momentum भी क्या होगा दोनों का? gun plus initial momentum of gun plus initial momentum of bullet is 0 because velocity of both is 0, right? Again, so what is the final momentum? Final momentum किसका होगा? गन का final momentum होगा और बुलेट का final momentum होगा, right? Exactly. So what is the final momentum of the bullet? Final momentum of the bullet is, बुलेट का final momentum क्या है? Mass of the bullet. What is the mass of the bullet? It is 100 ग्राम. तो हमें पहले इसको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हम SI सिस्टम में बात करेंगे. सारी यूनिट्स SI में होनी चाहिए. तो what is the SI unit of mass? It is kg. So let's convert 100 gram into kg. That would be 0.1 kg. So this is mass of the bullet. And what is the speed of the bullet? Velocity of the bullet? It is 100 meter per second. So what is the momentum of the bullet? Final momentum of the bullet is 10 kg meter per second. So from the conservation of momentum, दोनों का सम क्या होना चाहिए? बुलेट का फाइनल मोमेंटम प्लस गन का फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? सिस्टम का 0 था. तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए. तो यहां से हमें गन का फाइनल मोमेंटम पता चलता है. क्या है फाइनल मोमेंटम ऑफ गन? इट इज -10
केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, बुलेट के मोमेंटम को इधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. सो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन इनटू मास ऑफ द गन. व्हाट इज द मास ऑफ द गन, 20 kg. सो दिस इज इक्वल टू -10. सो वेलोसिटी अपने पास कितनी आ रही है, -1/2, दैट इज -0.5 मीटर पर सेकेंड. अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि वो गन पीछे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि हमने किसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, बुलेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है. तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है. तो अपने पास अपने आप जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, राइट. सो दिस वाज मॉडरेट क्वेश्चन, नॉट वेरी टफ. So let's move to the third question. Okay, here periscope work on the principle of multiple reflections. एक जनरल स्टेटमेंट दिया है, that is correct. पेरिस्कोप क्या होता है, वो सबमरीन्स में यूज करते हैं ना. सबमरीन अंडर वाटर होता है, तो बाहर क्या चल रहा है उसमें इसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेरिस्कोप यूज करते हैं. तो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का फिनोमेना यूज होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मिरर्स. उसमें 2 से ज्यादा मिरर्स यूज होते हैं. तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन मीन्स मल्टीपल मिरर्स. तो इफ द 2 मिरर्स आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री, एक जनरल सी बात कर रहा है वो, अगर 2 मिरर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो आपको बताना था कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी. अब 2 मिरर्स मींस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन केस व्हेन द एंगल बिटवीन 2 मिरर्स इज 90 डिग्री. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 360 डिवाइड बाय थीटा करना है. व्हाट इज थीटा, थीटा इज 90. सो 360 डिवाइड बाय 90 इज 4. 360 डिवाइड बाय 90 इज 4. तो 4 क्या है, 4 अपना क्या है, दिस इज यार इवन नंबर. तो अगर इवन नंबर आता है 360 डिवाइड बाय थीटा, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 4 - 1. 360 डिवाइड बाय थीटा -1. अगर इवन आता है तो -1 करते हैं, अगर ऑड आएगा तो एज इट इज रहता है. तो नंबर ऑफ इमेजेस इज 3 इमेजेस बनेंगी यहाँ पे जब एंगल बिटवीन 2 मिरर्स क्या होगा, 90 डिग्री होगा. तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, सब लोगों का सही होना चाहिए, राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. A trolley is moving at a constant speed. Okay, here it is, trolley is moving at a constant speed 2 meters per second. Now Zoya and Jishan begin pushing the trolley at the same time from opposite directions. तो जिशान और जोया दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पुली को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. बोथ ऑफ देम आर अप्लाइंग फोर्स ऑफ 15 न्यूटन. दोनों 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं. फाइन. सो लेट्स सी व्हाट इज एफबीडी ड्रॉ करते हैं हम पुली इसका, ट्रॉली का. सो ट्रॉली का इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, जो जिशान लगा रहा है दैट इज 15 न्यूटन, और जोया कितने फोर्स लगा रहा है, वो भी 15 न्यूटन ही लगा रहा है ना. सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स इज स्टिल 0, क्योंकि 15 न्यूटन इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है और 15 न्यूटन इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है. तो दोनों अपना दोनों बैलेंस है ना, बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को. तो टोटल फोर्स कितनी है, 0, राइट. सो नेट फोर्स अप्लाइड इज 0. तो आपको बताना है ट्रॉली का स्पीड अब कितना होगा. अब हमें न्यूटन ने बताया कि जब तक नेट फोर्स नहीं लगता तब तक कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं आता, ऐसे सोच लो. या फिर उसका इनर्शिया चेंज तब होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा. सो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. क्यों, क्योंकि नेट फोर्स लग ही नहीं रहा है. सो व्हाट शुड बी द आंसर, इट रिमेन्स कांस्टेंट. स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. Okay, let's move to the 5th question. So analyze the given statements, choose the correct option. If a glass rod is rubbed with silk cloth, it acquires positive charge. देखा है हम लोगों ने, है ना, कि अगर ग्लास रॉड हम रब करते हैं सिल्क क्लोथ के साथ तो ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है. अभी स्टेटमेंट 2 क्या बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. जब किसी भी बॉडी क्या होती है, बेसिकली न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्जेस है उसके पास, है ना. तो जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेंगे तो किसका नंबर बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस का नंबर बढ़ जाएगा. तो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. एग्जैक्टली. सो दिस इज ट्रू. और ये इसका रीजन भी है. स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ग्लास ने क्या किया है, लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो आंसर क्या होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू and the second one is correct explanation for first. So this is the right answer. A option is the correct answer. Okay, let's move to the last question of the physics part. Electric current is passed through a conducting solution. The following are the observations. तो हमें बताना है कि which of the following observations are correct. 3 observations हुई, उनमें से कौन सा observation correct है या तीनों correct हैं. Let's see that. So when current is passed through conducting solutions, what happens is
डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। यस, क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल क्या करता है, डिपॉजिट होता है और दूसरे से करोड होता है ना, तो एक के ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल जाके स्टिक कर जाता है, तो दैट इज करेक्ट। सोल्यूशन में गेट्स हीटेड, एग्जैक्टली। तो जब करंट पास करते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है वहां पे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है अब तक। बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, तो जब वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है तो गैसेस भी तो रिलीज हो सकती हैं, तो वो गैसेस की वजह से क्या होता है, बबल फॉर्म होते हैं, राइट, बबल फॉर्म होते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, आंसर क्या है अपना डी है। दिस वाज आल्सो इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही होंगे, अगर सारे सही नहीं होंगे एटलीस्ट 90% आंसर्स तो सही होंगे, है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज केमिस्ट्री डिस्कशन। Hey guys, I hope all of you are doing really well. So मुझे लगता है कि आपने अपना GTSC का एग्जाम अपने फुल पोटेंशियल के साथ दिया होगा, right? So your very own DSVH sir Diwan Sunil Vijay Hingorani is here with you to discuss the solutions of slot 3 chemistry. तो slot 3 में आपका जो भी केमिस्ट्री का सेक्शन था, we are going to discuss about that part. ठीक है, तो चलिए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री। ठीक है, लेट्स सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। चलिए, सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन सेज, प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। सो A प्लस बी सी विल गिव AC प्लस सी। अब आपको क्वेश्चन का जो टाइप देख के ही मुझे समझ में आ जा रहा है कि भाई ये क्या है। This is nothing but displacement reaction. Okay, this is nothing but displacement reaction. Okay, why this is a displacement or you can say replacement reaction? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? Because what is happening, if you will see that A which was here acting as an element displaces B from its compound and that is basically into the solution state. So A ने क्या कर दिया, यहां से B को डिस्प्लेस कर दिया और C के साथ बॉन्ड बना लिया which is here a non-metal. So that is AC plus B. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा केस है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा केस, जो आपको यहां पे तो 4 केस दे रखे हैं, इसमें से कौन सा केस विल फॉलो दिस रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, सो देखते हैं कि यहां पे द सोल्यूशन ऑफ AgNO3 प्लस कॉपर, तो क्या AgNO3 प्लस कॉपर का रिएक्शन हो सकता है? सो मुझे पता है कि सर रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन Ag, आई नो दिस थिंग. If reactivity of copper is more than silver, what does it mean? That copper can easily leave electron or can easily donate electron as compared to Ag. This basically means copper can easily give electron as compared to Ag, that is your silver. So यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा कि AgNO3 में क्या हो जाएगा कि यहां पे कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, बिकॉज कॉपर विल डिस्प्लेस Ag from AgNO3 and copper nitrate, that is a blue color solution, is basically formed into this scenario. And Ag आपको क्या हो जाएगा, precipitate out हो जाएगा. So if I'll write this equation, it will look like this कि मान लेते हैं copper solid है and it reacts with AgNO3, that is nothing but in aqueous state. So when this will react with this AgNO3, so it will form CuNO3 whole twice. Okay, now this is aqueous plus Ag will precipitate out. Okay, or you can directly write this as solid, or you can write this as, solid. Okay, so this will be the overall reaction. Right now this equation is not balanced. You can balance the chemical equation, but the main agenda is to identify that which reaction is feasible and which among the following is a displacement reaction or what type of reaction it is. So a displacement है and इसमें से जो first case है that is possible. MgCl2 plus aluminium हो सकता है क्या? So अगर आप बोलेंगे please stop calling me a, तो मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, सो दिस रिएक्शन वोंट हैपन. FeSO4 plus silver, Fe की रिएक्टिविटी इज मोर देन दैट ऑफ सिल्वर, सो दिस रिएक्शन आल्सो वोंट हैपन. एंड NaCl और कॉपर, सो दिस रिएक्शन आल्सो वोंट हैपन, क्योंकि हमारा सिल्वर का रिएक्टिविटी, यहां जो लास्ट केस है कॉपर का रिएक्टिविटी हमारे सोडियम क्लोराइड में सोडियम से कम है, थर्ड केस में सिल्वर का रिएक्टिविटी हमारे Fe से कम है, सेकंड केस में एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी हमारे मैग्नीशियम से कम है. सो रिएक्टिविटी कम होने का मतलब क्या है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, तो सॉल्ट सॉल्यूशन उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा.
Very simple question. So the correct answer for this question is nothing but A, that is displacement reaction, and the option is first. Okay, so that is the correct answer of this question. I hope आपको समझ में आया होगा. Now let's move on to the next question. So this was the second question. Now you have to read the statements given below and choose the correct option. Now the very first statement says non-metals react with oxygen to form acidic oxide. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, राइट. तो नॉन मेटल्स के एसिडिक ऑक्साइड्स भी होते हैं. नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ईदर दे आर एसिडिक और ईदर दे आर न्यूट्रल. लेट मी गिव एन एग्जांपल. अगर न्यूट्रल है तो वाटर आपका न्यूट्रल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका न्यूट्रल होता है. सो दीज आर न्यूट्रल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या हुआ? नॉन मेटल का ऑक्सीजन से अगर बॉन्ड बन रहा है, सो दैट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से सर? आपका CO2 ले लो, NO2 ले लो, SO2 ले लो, है ना, एक्सेट्रा. ये जब वाटर से कंबाइन होते हैं तो आपकी एसिड रेन भी बनती है. लाइक CO2 प्लस H2O विल गिव कार्बोनिक एसिड. NO2 प्लस H2O प्लस O2, मतलब इसका ऑक्सीडेशन डायरेक्टली कर देता हूं. सो इट विल गिव अ मिक्सचर ऑफ HNO2 प्लस HNO3. फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो HNO3 बन जाएगा नाइट्रिक एसिड. SO2 विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू गिव SO3 एंड विल मिक्स विद वाटर टू फॉर्म योर सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स है एंड दीज आर नथिंग बट द न्यूट्रल ऑक्साइड्स. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है सर? पहले स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेरा पहला स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है नाइट्रोजन बीइंग अ नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एट नॉर्मल कंडीशंस. ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर ऐसा होता तो फिर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर फ्रीली कैसे घूम रहे होते? दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर आप बोल रहे हो कि नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आप कंबाइन करोगे, दिस इज इनकरेक्ट. कब कंबाइन करेंगे सर? जब आपके पास नाइट्रोजन गैस है और मैं नेचुरल तरीका बता रहा हूं आपको, ऑक्सीजन गैस है और लाइटनिंग होगी, ठीक है, लाइटनिंग होगी, ठीक है. उसकी हीट से क्या होगा कि इतना ज्यादा हीट मिल जाएगा कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उनका अगर मोशन बढ़ जाएगा, so they will start to collide with each other and they will form, that is nitrogen monoxide. ठीक है, that is twice of NO. this is again a gas. ठीक है, फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, NO2 बना लेता है और फिर NO2 वापस आपका बेसिकली वाटर वेपर के साथ मिक्स होगा, एन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा तो HNO2 प्लस HNO3 बनता है. दैट आई होप यू नो. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉर श्योर गलत है कि नॉर्मल कंडीशंस पे वो रिएक्ट नहीं करता है. आप लाइटनिंग, अगर जैसे नेचुरल फिनोमेना बता रहा हूं, लाइटनिंग या फिर आपकी जो गाड़ी वगैरह के फ्यूल्स में जो नाइट्रोजन होता है, जब आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाते हो, दैट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑक्सीजन, तो वहां पर भी NO2 बन जाता है. तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर तो चाहिए ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि नॉर्मल होगा तो रिएक्ट कर लेगा, फिर तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फ्रीली घूम ही नहीं सकती, ऑक्सीजन भी घूम नहीं सकती. ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. अकॉर्डिंग टू मी द आंसर A is the correct option. ठीक है, एंड यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, राइट. इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेशन दैट वाज 9th in your GTSE paper. So now which of the following Venn diagrams depict the correct relationship between pure substance, compound and suspension? So the people who have attended my sessions, they know कि I put a lot of questions on Venn diagrams. ठीक है, और ये analysis based questions होते हैं. You need to know the concept. पहले कंसेप्ट आएगा तो आप एनालिसिस करोगे, तभी आप इसके कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो. ठीक है, अब आपको पता है कि सर कैटेगरी को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. या तो वो ईदर होंगे एलिमेंट्स, ईदर वो क्या होंगे, कंपाउंड्स होंगे. ठीक है, जो एलिमेंट्स होंगे चाहे कंपाउंड्स होंगे, दोनों प्योर सब्सटेंसेस एंड दे आर ऑलवेज केमिकली होमोजीनियस. क्या होते हैं सर? ये केमिकली होमोजीनियस होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं हर जगह सेम तरीके से प्रेजेंट होंगे, दैट आर केमिकली होमोजीनियस. तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. और सस्पेंशन जो है हमारा, वो इम्प्योर सब्सटेंस यानी जो मिक्सचर होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है, उसका टाइप होता है सर. बड़ी आसान सी बात है ना. इसके भी आपके टाइप्स हैं, सस्पेंशन है, कोलॉइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन है. तो ये क्या हो जाएगा, सस्पेंशन इसका टाइप हो जाएगा. ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सस्पेंशन में भी तो कंपाउंड है यहां पर.
बिल्कुल है बेटा, लेकिन जब प्योर सब्सटेंस के रिलेशन में वो आपसे इस चीज में बात कर रहा है, मतलब वो दो कैटेगरीज को डिफाइन कर रहा है. सो वन कैटेगरी इज प्योर सब्सटेंस, वन कैटेगरी इज इम्प्योर सब्सटेंस. सो आप बताओ कंपाउंड इज टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस. तो ये डायग्राम क्यों करेक्ट है मैं आपको बताता हूं. देखो, कंपाउंड दिस मींस दैट ऑल कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस बट ऑल प्योर सब्सटेंस इज नॉट कंपाउंड. ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा. ये वाला पार्ट कंपाउंड हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो एलिमेंट है. ये पूरा प्योर सब्सटेंस है, ये वाला पूरा सर्कल प्योर सब्सटेंस है, इतना पार्ट एलिमेंट है, ये वाला इनर सर्कल आपका कंपाउंड है. और ये आपका इम्प्योर सब्सटेंस में किसकी बात हो रही है, यहां पे इम्प्योर सब्सटेंस में बात हो रही है किसकी, उसके एक टाइप की, जो कि क्या है, सस्पेंशन है. अगर दूसरा सबसे सेट बना लेता मैं मिक्सचर, तो सस्पेंशन उसके अंदर आ जाता और वो हो जाता. ठीक है, अब ये तो है नहीं कि यहां पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पर सही नहीं है. ठीक है, नहीं ये बी वाला सही है, नहीं ए वाला सही है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट सी. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. यू नीड टू एनालाइज. हाउ यू कैन एनालाइज, व्हेन यू नो द कंसेप्ट. ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे. अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है सर मुझे कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मुझे मैच करवाना है. ठीक है, इजीली कर लेते हैं. पहला दे रखा है इंसुलेटर. इंसुलेटर की जगह यहां पर अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी डिस्प्लेस कर सकता हूं कि मैं यहां बोल देता हूं पुअर कंडक्टर. ठीक है, ऐसे भी मैं बात कर सकता हूं. ठीक है, सो प्रिवेंट्स रस्टिंग, प्योर वाटर, रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन. तो मुझे लगता है यहां पर ये आंसर है. अब कैसे ये आंसर है, आपका प्योर वाटर की बात करूं या फिर आपके डिस्टिल वाटर की बात करें, तो डिस्टिल वाटर में या प्योर वाटर में नो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स आर देयर, नो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स. अब कोई डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स नहीं है तो क्या ब्रेक होगा और क्या कंडक्शन करेगा, कुछ कंडक्शन ही नहीं हो पाएगा ना. आपका रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बिकॉज उसके अंदर आपके पास क्या है, कार्बोनिक एसिड तो हमेशा ही रहेगा नेचुरल रेन वाटर में. एसिड रेन, आप नेचुरल रेन वाटर लो, कार्बोनिक एसिड हमेशा रहेगा, तो वो डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. या जो दूसरे सॉल्ट्स है वो ब्रोकन डाउन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. यहां पर कोई भी डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स नहीं होते, इसलिए इसका टेस्ट भी फ्लैट होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है. अच्छा, यानी यहां पर 1 का आंसर जो है, ए का आंसर क्या हो गया, ए का आंसर हो गया क्यू. अब सर मिथाइल ऑरेंज की बात कर लेते हैं. मिथाइल ऑरेंज जो हमारा इंडिकेटर है वो न्यूट्रल में कैसा दिखता है, वो एसिडिक मीडियम में कैसा दिखता है और वो बेसिक मीडियम में कैसा दिखता है. न्यूट्रल की बात करें तो ऑरेंज है तो वहां पर क्या रहेगा, ऑरेंज ही रहेगा. एसिडिक मीडियम में कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा. और बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा. ठीक है, सो मिथाइल ऑरेंज यहां पर रेड इन एसिडिक सोल्यूशन, यही आंसर हो जाएगा, रेड इन एसिडिक सोल्यूशन. सो बी का आंसर हो जाएगा नथिंग बट आर. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक तरीका है आपका रस्टिंग रोकने का. ठीक है, इट इज अ वे टू प्रिवेंट दी रस्टिंग. बहुत सारे सब्सटेंसेस की आप क्या करते हो, प्लेटिंग करवाते हो, जैसे टिन प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो रस्टिंग को बचाने के लिए किया जाता है. ठीक है, सो रस्टिंग इज हैपनिंग इन केस ऑफ आयरन. सिर्फ आयरन के केस में यहां पर बात हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि आप सबके केस में आप क्या रस्टिंग ही प्रिवेंट कर रहे हो. इफ यू आर टॉक अबाउट अदर मेटल्स, द corrosion, the type of corrosion will change. Here if you are talking about rusting, so we are talking specifically about iron. So electroplating, that means prevents rusting. So the answer for C will become P. And automatically phenolphthalein is colorless in acidic solution. We all know about this part, that phenolphthalein changes colors only in basic medium. It is pink in alkaline और basic medium. Okay, ये क्या होता है, पिंक होता है हमारे एल्कलाइन या फिर बेसिक मीडियम में, बाकी न्यूट्रल में या फिर ये एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है. इसका पीएच रेंज 8.3 है, मतलब उसके बाद ही कलर चेंज करना स्टार्ट करता है, उससे पहले सारे पीएच रेंजेस पे ये क्या रहता है, ये आपका कलरलेस रहेगा. ठीक है, सो ए क्यू बी आर सी पी डी एस, ए क्यू बी आर सी पी डी एस, मुझे तो डी लग रहा है. क्या डी आंसर है, बिल्कुल डी आंसर है, ए क्यू बी आर सी पी डी एस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट डी. ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, यू जस्ट नीड टू एनालिस, डू द एनालिसिस पार्ट इफ यू प्रॉपरली नो द कंसेप्ट. ठीक है, या कुछ मेमोरी वाला पार्ट भी यहां पर आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में मेमोरी वाला पार्ट था. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Rohan studied the interconversion of state and got confused in the conditions to liquefy the gas. Help him by completing the statement. Liquefaction of gases increases with dash in pressure and dash in temperature. Now understand this part. So let's suppose if you have gas, okay, and you want to convert it to liquid. Okay, just understand the basic idea. अगर मैं वहां पर atomic arrangement या atoms के arrangement की बात करूं, है ना, इफ आई गो टू द एटॉमिक लेवल, तो मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, गैसेस में ज्यादा होता है,
लिक्विड्स में थोड़ा क्या होगा, कम होगा. So what you have to do if you want to convert the gaseous state to liquid state, you need to decrease the distance. Interparticle distance को आपको क्या करना पड़ेगा, you need to decrease the interparticle distance. अब interparticle distance अगर आपने डिक्रीज कर दी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा एंड स्टेट कन्वर्जन क्या हो जाएगा, हो जाएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज एंड स्टेट कन्वर्जन विल हैपन. ठीक है. अब ये इतना आसान नहीं है. पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ यू विल इंक्रीज द प्रेशर. इफ यू विल इंक्रीज द प्रेशर द पार्टिकल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर. ठीक है. तो आप बोलोगे सर प्रेशर बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर. मान लो गैस के पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं. ठीक है. ये मान लीजिए सिस्टम है, इसके अंदर एक दूसरे के पास जा रहे हैं. But please understand this idea, when you are increasing the pressure and the particles are coming closer towards each other, they won't liquefy until and unless the temperature is reduced. इसके पीछे रीजन क्या मैं आपको बताता हूं. जो भी एनर्जी आप सिस्टम को दे रहे हो वो एनर्जी सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो वो क्या करेगी, उसकी इंटरनल जो एनर्जी उसको बढ़ाएगी, एज इन कि काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगी, वो क्या कर देगी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी, जो फर्दर आपके टेम्परेचर को बढ़ा देगा. प्लीज नोट इट डाउन. ये मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा कि एडियाबैटिक सिस्टम है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक का कैसा सिस्टम है. आई एम नॉट टीचिंग यू दिस पार्ट इनटू डिटेल बिकॉज अभी आप ये नहीं समझ पाएंगे, बट कुछ आइडिया आपको हो जाएगा कि सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से आप कुछ भी कर लो, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, द गैस वोंट लिक्विफाई बिकॉज काइनेट जो आप एनर्जी दे रहे हो उसको कंप्रेस करने के लिए, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हो उसका, वो एनर्जी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स को मिल रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू डिक्रीज द टेम्परेचर एज वेल. जैसे ही आप टेम्परेचर घटाओगे, यानी टेम्परेचर क्या करोगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर आप रिड्यूस करोगे ताकि सिस्टम से हीट ट्रांसफर हो जाए बाहर की तरफ, ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिड्यूस. I hope you are able to understand this part. So the kinetic energy of the system will reduce. ठीक है. Kinetic energy of system will reduce, तो for sure आपका liquefaction हो जाएगा. So liquefaction of gases increases with increase in pressure and decrease in the temperature. Increase in pressure and the decrease in the temperature. So for sure A is the correct answer. बात समझ में आ गई. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. द क्वेश्चन सेज डू द करेक्ट मैचिंग बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलिए फाइबर विच इज फ्लेम रिटार्डेंट. तो आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस दैट विच इज फ्लेम रिटार्डेंट. योर मेलामाइन इज फ्लेम रिटार्डेंट. हियर आई थिंक इट शुड बी प्लास्टिक. ओके, सो द प्लास्टिक विच इज फ्लेम रिटार्डेंट इज नथिंग बट melamine. By mistake it is written fiber, so plastic which is flame retardant is nothing but melamine. Okay, fibers also known as regenerated fibers. So the correct answer for this question is D, that is rayon. ठीक है. अब regenerated fiber क्यों बोलते हैं, because rayon क्या होता है, rayon is nothing but a semi synthetic fiber भी कहते हैं इसको हम. What is known, semi synthetic / regenerated fiber. ऐसा क्यों है, क्योंकि आप क्या कराते हो, सेल्यूलोज का केमिकल ट्रीटमेंट कराते हो. सेल्यूलोज, ओके, सेल्यूलोज का केमिकल ट्रीटमेंट कराते हो. लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी क्लियरली. ओके, सेल्यूलोज का आप क्या करवाते हैं, जैसे ही आप इसका केमिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे, सो व्हाट यू विल गेट सेल्यूलोज एसीटेट. ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं रेयॉन. ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल है. दिस इज नेचुरल. आप नेचुरल चीज का क्या करा रहे हो, ट्रीटमेंट करवा रहे हो और उसको बना रहे हो. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी सिंथेटिक. ना तो कंप्लीटली नेचुरल है ना कंप्लीटली सिंथेटिक है. कंप्लीटली सिंथेटिक मींस जो केमिकल से सिंथेसाइज किया हुआ है. कंप्लीटली नेचुरल मींस जो प्योरली नेचुरल मींस से लिया गया है. लेकिन ये तो रीजनरेटेड फाइबर है. नेचुरल सोर्स को उठाया, केमिकल ट्रीटमेंट करा और फाइबर बना दिया. सो दिस इज रेयॉन. Parachutes are made from this fiber, so this is nothing but nylon, because हमें पता nylon is very strong, durable, so that's why we are using this nylon के parachutes. तो आंसर हो जाएगा ये. Shawls woven from the Kashmir goat, that is known as pashmina, that is very very famous. Okay, so first का आंसर है मेरा B. फर्स्ट का आंसर बी किसमें आ रहा है, फर्स्ट का आंसर बी आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज और तो किसी के अंदर फर्स्ट का आंसर बी है नहीं. सेकंड का आंसर है हमारे पास यहाँ पर डी. सेकंड का आंसर है डी,
थर्ड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर है, फोर्थ का आंसर होगा यहाँ पर सी, फोर्थ का आंसर सी, फॉर श्योर सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक जितने मैंने करा ये सारे समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So a small amount of black powdery substance X is taken in a test tube. ठीक है, when X reacts with dilute hydrochloric acid, it forms a compound Y and a blue-green solution X and YR. ठीक है, so देखो यार ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस आपको पहले ही दे दिया, ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस इसमें से कौन सा, आप यहां से देखो कॉपर, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लैक पाउडर होता नहीं है, ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ये भी आंसर क्या हो गया, वैसे ही कट गया। सोडियम ऑक्साइड भी व्हाइट कलर का होता है, ये भी वैसे ही कट गया। मेरा आंसर वैसे ही आ गया, कॉपर ऑक्साइड। मैं सीधे ही आंसर पे आ गया। ठीक है, सो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आंसर यहाँ पर कैसे आया। तो इसलिए आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट यू शुड स्टॉप लाइक यू नो हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ठीक है, हर बार देखते क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन को देखना और गायब करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, सो ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस इज कॉपर ऑक्साइड, दैट इज द सब्सटेंस X when it reacts with dilute hydrochloric acid that is in aqueous state। तो यहाँ पर कॉपर के लिए भी स्टेट लिख लेते हैं, मजा आ जाएगा यहाँ पे। ओके, so now let me write the state for this, this is solid state and this is substance X, it will form CuCl2 plus, now this is in aqueous state, plus hydrogen gas, okay, right, and a blue green solution, so it will form H2O, sorry it's not hydrogen, it will form H2O, right, yeah, it will form H2O, right. So copper oxide will react with dilute HCl to give CuCl2 plus H2O, right, that is water, and this copper chloride is nothing but a blue green solution. Okay, now this reaction also tell you that metal oxides are basic in nature, this also tell you that metal oxides are basic in nature, this is nothing but your acid, this is nothing but your salt, and this is nothing but your water. So this is a type of neutralization reaction as well. So अगर कहीं कोई पूछ ले किस तरीके का रिएक्शन है, so tell them this is a type of neutralization reaction. ठीक है, so I hope आप लोगों को अभी तक ये सारी चीजें समझ में आ रही है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, वेरी बेसिक क्वेश्चंस, वे टू बेसिक क्वेश्चंस, कंसेप्ट, मेमोरी, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन का खेल चल रहा है बस, और कुछ भी नहीं चल रहा, राइट। So the answer was A. So guys, stay tuned with us, and if you have any queries, please drop your queries at support@goprep.co, or you can directly contact on this number. Till then, take care, bye bye, we'll meet again. हेलो एवरीवन, आई होप आपका जीटीएससी एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है एंड यू गाइज आर क्यूरियस टू नो द आंसर ऑफ द वेरियस क्वेश्चन. सो आई एम हेयर टू डिस्कस ऑल द बायोलॉजी क्वेश्चंस व्हिच केम इन योर जीटीएससी एग्जाम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज refer to the given experimental setup as shown in the given figure and select the correct option regarding it. So have a look over the setup. So as you can see, the flask is represented with the X while the tube is represented with the Y. And what is there in the flask? There is warm sugar solution along with the yeast in the flask. And what is there in the Y tube? There's lime water. So now let us have a look over the option. So the first option is saying in X, yeast causes fermentation which converts sugar into lactic acid and carbon dioxide. So guys, when yeast react with the sugar solution, बच्चा किस में convert करता है? It convert it into alcohol and carbon dioxide. It never converted into lactic acid. So बच्चा हमारा पहला तो obviously गलत हो गया because it is saying that it converted into lactic acid. So our first option is absolutely incorrect. Moving to the option B, the option B is saying that in Y oxygen gas is released. Okay, बोलता क्या है कि in Y oxygen gas is released while carbon dioxide gas is absorbed. But you can see over here there is only lime water. So बच्चा कहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है, और कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब होगा. While the option C is saying that in Y lime water turns milky. So all of you know, as I told you, that from X what will happen? The sugar solution and yeast is there. So the yeast will feed on the sugar solution and it will convert it into alcohol and carbon dioxide. When this carbon dioxide reaches to the lime water
it will makes the lime water milky. The lime water will react with the carbon dioxide and it will turns milky. So the correct option is answer C. So बच्चा आप लोगों का correct option क्या हो गया? आप लोगों का correct option हो गया answer C. Okay, moving to the, I hope आपका correct हुआ होगा. Moving to the next question. The question is saying, read the statement which is related to the digestive system and choose a word for it. The statement is that transportation of absorbed food to different parts of the body and its utilization. You have to give a word for this statement. इस statement के लिए आपको एक particular word देना है. So guys, when we talk about the holozoic nutrition, the first step is ingestion. What do you mean by ingestion? That is intake of food. पहले हम क्या करते हैं बच्चा? पहले हम food को intake करते हैं. With as soon as the food reaches to the digestive system, उसका breakdown start होता है. That is digestion. It means complex food का the conversion of complex food into simpler one. ठीक है? So digestive system में क्या हो गया बच्चा? The complex food get converted into the simpler one. After that, this simpler food is absorbed by blood. बच्चा, which is known as absorption. Okay? As soon as the blood absorb it, what is the role of the blood? It will transport it to the various cells. ठीक है? It will transport the absorbed food to the various cells, to the various parts of the body, and then the cell will utilize its food for the food for the various purposes such as growth, repairing wound, etc. So it means बच्चा हमको इसके लिए एक word देना है. The word is assimilation. So the correct answer will be option A. Option A बच्चा आपका correct answer हो जाएगा. I hope आपका ये answer correct था. Moving to the next question, dear. The question is saying the grass is rich in a special kind of complex carbohydrate which can be digested by ruminants. So बच्चे grass में एक ऐसा carbohydrate होता है which can be only digested by ruminants. For example, cow, goat, क्योंकि वो लोग grass खाते हैं. So बच्चा that complex carbohydrate is cellulose and the ruminants have an enzyme called as cellulase which helps in the digestion of the cellulose. So the correct answer is option C. Moving to the next question, the question is saying an athlete after running for a kilometer marathon starts to breathe very heavily. His breathing rate would be defined as the number of time he breathes in a, you have to find कि यहाँ पे हमें क्या fill करना है. It increases the breathing rate increases because demand for dash increases. So guys, when we are measuring breathing rate, हम किस में measure करते हैं बच्चा? The number of time we breathe in a minute. हम एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं, हम उससे ब्रीदिंग रेट को डिफाइन करते हैं. एंड when we are doing vigorous exercise, हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, and when we are running, the demand for the oxygen increases. ऑक्सीजन के लिए डिमांड बच्चा इंक्रीज होता है, और इस डिमांड को हम कैसे फुलफिल करते हैं? by increasing our breathing rate. So the correct answer is option B. Moving to the next question, the question is saying Reena wants to study why some birds have highly pigmented feathers. रीना ये जानना चाहती है कि कुछ जो birds होती हैं उनके जो feathers होते हैं उसमें इतना ज़्यादा pigment क्यों होता है? This type of study is known as, basically dear, when we are studying about birds, the study is known as ornithology. So the correct answer is A. So let us discuss all the options. What is entomology? Entomology is, dear, study of insects. What is hepatology, dear? Hepatic system is hepatic is the word related to the liver. So hepatology is the study of the liver. Morphology बच्चा क्या हो जाएगा? Morphology is the study of external structure. ठीक है, जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे कि कोई प्लांट उसका स्ट्रक्चर हमें देखना है, ऐसे स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ दिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर फाउंड इन अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम. सो हैव अ लुक ओवर इट. सो डियर, एज यू ऑल नो, द सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन. सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, this is the cell membrane, and we also know that the bacteria have a layer outside the cell membrane जिसको dear हम cell wall कहते हैं. The cell wall is made up of what? The bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. इनकी जो cell wall होती है बच्चा किसकी बनी होती है? It is made up of peptidoglycan.
But in some bacteria outside this cell wall there is one more covering. Dear, इस सेल वॉल के बाहर भी एक और कवरिंग होती है जो कि बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, उसको अपने होस्ट से अटैच होने में, इन सब में हेल्प करती है. दिस पर्टिकुलर कवरिंग इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स. सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट. Moving to the next question. The question is saying I gather molecules and make them more complex. I store these molecules or send them into the cytosol or out of the cell. I process the protein produced by the endoplasmic reticulum and ribosome. Who am I? So guys, if we talk about a cell organelle, जिसको बच्चा हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं. So what is the role of this particular cell organelle? Dear, it modifies the protein. जो भी प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है, उसको मॉडिफाई करती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ प्रोटीन एंड उसको बच्चा उस पर ग्लूकोज, उसको हमको कन्वर्ट करना है ग्लाइकोप्रोटीन में. सो डियर, ये मॉडिफिकेशन कहाँ होता है? ऑल दिस मॉडिफिकेशन टेक प्लेस इन द गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज मॉडिफाई देम, सॉर्ट देम. ठीक है, सो ये सारा काम किसका है बच्चे? सारा काम गोल्जी बॉडी का है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. आई होप आपके मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट थे एंड यू लाइक द क्वेश्चन टू. नाउ यू कैन डिस्कस योर मैथमेटिक्स पार्ट. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. हे दोस्तों, तो हम अपने मैथमेटिक्स के पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं. होपफुली आप सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा ये पेपर. सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहा है भाई देखने में. एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो. ठीक है, येलो पेन ले लेते हैं ना यार, वो ज्यादा क्लियरली आपको दिखाई देगा. एक्स धनात्मक, वाई ऋणात्मक. हिंदी बोल रहा हूँ देखो, है ना. तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल हो. ठीक है, अब देखो मान लिया ना एब्सिसा की लेंथ 2 है और एब्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, है ना, और ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को. मान लिया ये भी 2 है, तो ये 2,2. हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ठीक है, बट सेकंड में क्या हो जाएगा? और एब्सिसा नेगेटिव हो जाएगा, वो नहीं चलेगा. और थर्ड में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे, ये चलेगा. तो ये दोनों क्वाड्रेंट हैं जिसमें फर्स्ट और थर्ड, जिसमें दोनों सेम है, बट यहां पर क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे वाई नेगेटिव हो जाएगा और एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड हम यही बोलेंगे यार, है ना. ये भी सिंपल ही है ना यार, यही आंसर है क्या? यही आंसर है. नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आ गया हमारा. इसमें हम देखें यार, इस तरीके के क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं कि हम इसे कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं इसे 0.123 बार का मतलब कि 3 की रेल चल रही है यहाँ पे इनफाइनाइट तक. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 100 से कर लेते हैं. एक बार 100 से मल्टीप्लाई करके 12.33333 ऐसे आ जाएगा. फिर एक और बार 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 123.333 की रेल चल जाएगी. नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 900x इज इक्वल टू, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 111 आना चाहिए. 0.3 की रेल कैंसिल हो जाएगी. सही बात है. x आ जाएगा 111/900. ठीक है, 3 से कैंसिल करो तो ऊपर आ जाएगा हमारा आई थिंक 37 आ जाएगा. ठीक है ना, 3 9 2 21 है ना, यही आएगा. और नीचे क्या आएगा? 300. कोई ऑप्शन नहीं है, डी आंसर है. डी आंसर है भाई, कोई ऑप्शन नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में. आप इसे रेशनलाइज करके करो. ठीक है, रेशनलाइज करोगे फर्स्ट क्वेश्चन को. रेशनलाइज करते ही, रेशनलाइज करने का मतलब होता है डिनोमिनेटर में प्लस लगा के मल्टीप्लाई कर दो. डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं, तो देखो नीचे 3 - 2 1 आ जाना चाहिए. ऊपर आ जाएगा √3 + √2 का स्क्वायर. ठीक है, रेशनलाइज करने पे. सिमिलरली y को ना आप सॉल्व करो, सिमिलरली y ऐसा आ जाएगा √3 - √2 का स्क्वायर. रेशनलाइज करके इसको थोड़ा ओपन कर लो तो ये आ जाएगा 3 + 2 5 प्लस 2ab मतलब 2√6. ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये आ जाएगा 5 - 2ab 2√6. ठीक है, अब क्या बोला भाई? x² + y² कर लो. स्क्वायर करके ऐड करो यार, ये 25 5 स्क्वायर 2 बार आएगा, प्लस 2 स्क्वायर इंटू 6 मतलब 24 भी 2 बार आएगा, और ये प्लस 2ab इससे आएगा, माइनस 2ab इससे आएगा, वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल. तो 50 + 48 98 कोई ऑप्शन है? बी ऑप्शन है. ग्रेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये फैक्टर थ्योरम क्या होती है यार? फैक्टर थ्योरम बोलती है फैक्टर जो है, अगर हम इसे इसमें x को 1 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए. x को -2 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए.
एक बार -2 पुट करो तो क्या आएगा, -2 ये आ जाएगा -2 का क्यूब -8 प्लस 10 इंटू 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर तो 40 प्लस -2m प्लस n इज इक्वल टू 0। ये इसी पूरे को इधर ले जाते हैं हम तो ये हो जाएगा 2m माइनस n इज इक्वल टू 32। अब x को 1 पुट करो, एक बार 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n 0। तो यार इसको इधर लिख देता हूं मैं, m प्लस n इज इक्वल टू -11, ये हो जाएगा। ऐड कर दो दोनों को तो ये 21 हो जाना चाहिए ना, और इसको ऐड करेंगे तो ये 3m। तो m की वैल्यू तो आ गई 7, m को यहाँ पे डाल दो 7 इस वाली इक्वेशन में, तो n की वैल्यू आ जाएगी -11 -7 -18। ऐसा कोई ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, देखो पूरा सॉल्व किया भाई, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा अब मैं, बहुत कर ली कैलकुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, x की रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि x की जगह ये इसको 0 के इक्वल रख करके आ रहा है a, वो यहाँ पे पुट कर दो, वही रिमाइंडर है। तो क्या आ जाएगा भाई, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a, है ना, a इंटू a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a इज द आंसर। ठीक है, b इज द आंसर। ओके नेक्स्ट, ये यार यहाँ पे t रॉन्गली लिखा हुआ है, इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा -6x प्लस 2x माइनस 12। ठीक है, इसको आगे फर्दर x माइनस 6 x कॉमन आ गया बाहर, प्लस 2x माइनस 6, तो क्या हो गया x माइनस 6 इंटू x प्लस 2। ऐसा कोई ऑप्शन है? काम ही खत्म हो गया भाई। अरे सॉरी x प्लस 6 है इसमें, बी में, डी इज द आंसर। ठीक है, तो देखो यार जल्दीबाजी में मिस्टेक नहीं करने का, आप लोग भी गलत मत मार देना कहीं जल्दीबाजी में, देखो मैं मार रहा था गलत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 27 हो गया, 28 पे आ जाता है। 28 में क्या है, अगर आप ना ध्यान से देखो, मैं डिफरेंट पेन ले लेता हूँ यहाँ पे पहले फिगर में बनाने के लिए। आप इसमें देखो नीचे जो ये आपका एक नीचे ट्रेपीजियम बना हुआ है, इसमें भी ये सेम ही होगा, आइडेंटिकल है, ये 4 होगा, ये 11 होगा, और ये लेंथ 5 है। ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, तो मतलब ये लेंथ भी 5 ही होगी यार, है ना, सारी लेंथ 5 ही होंगी ना यार, यहाँ पे ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो अब येलो पेन ले लेते हैं, इतना काम हो गया हमारा जी। तो अब देखो जो ऊपर वाला ट्रेपीजियम है, तो पूरे इस ऑक्टागन का एरिया क्या होगा, ऑक्टागन एरिया इज 2 टाइम्स ट्रेपीजियम का एरिया। वो दोनों ट्रेपीजियम सेम है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला ट्रेपीजियम और नीचे वाला ट्रेपीजियम सेम है, उसका 2 टाइम्स। ठीक है, प्लस बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया ना, मिडिल रेक्टेंगल का एरिया। अगर आप इसे ऐसे देखो ना, ऊपर नीचे जो ट्रेपीजियम है वो 2 बर्गर रखे हुए हैं, और बीच में आलू या कुछ भी जो भी टिक्की होती है, सैंडविच है ये। तो आलू वाला एरिया प्लस ब्रेड वाला, वो बर्गर वाला एरिया। ठीक है, तो 2 टाइम्स इसका एरिया क्या होता है, हाफ ऐसे होता है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 प्लस 11 इंटू 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 5 इंटू 11। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो यार, क्या आ जाएगा 16 चौक 48 प्लस 55। ठीक है, यही होगा ना यार, कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं, 16 चौक 64, सॉरी देखो गलती कर रहा हूं मैं, है ना, 12 चौक 48 होता है, तो 16 64 प्लस 55, ये कैलकुलेशन है यार, ये कैलकुलेशन है, से खुद कर लेना थोड़ी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है n-2 इंटू 180 डिग्री वाला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, जहां पे n नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ पे 5 है, तो 3 इंटू 180 दैट इज 540। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, यार ये सही नहीं दे रखा है यार यहाँ पे ना, बाकी सब ठीक है, बाकी देखते हैं एंगल वैल्यू निकाल के। यहाँ पे मेरे को ये याद है, x हो जाएगा 2z के इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है यार, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कंजुगेटिव एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, ये पता है, तो ये हो जाएगा भाई हमारा 2z मतलब 2 इंटू 55 डिग्री मतलब 110 डिग्री x, और y प्लस 2z की वैल्यू 180 होनी चाहिए। ठीक है, तो y हो जाएगा 2z 110 है, तो 180 माइनस 110 दैट मस्ट बी 70। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये 110 और 70, यार सी मतलब ये 70 होना चाहिए यार, है ना, गलत लिखा है जी। तो आपके ऑप्शन में बिल्कुल ठीक आया होगा, आई होप ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 40.96, यार इसे सिंपल लिखो 4096 बाय 100, और ये 100 बाहर मल्टीप्लाई है अंदर नहीं, तो 100 4096 का जो रूट होता है 64, 100 का होता है 10, तो 640 हमें डायरेक्टली आंसर दिखाई दे रहा है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1008 को किससे मल्टीप्लाई करूं। देखो फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 504, फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा
252 आना चाहिए ना, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मेरी ख्याल से इसका कुछ इस तरीके से फैक्टराइजेशन होना चाहिए। पेयर बन रहे हैं 2 के और 3 के, सिर्फ एक 7 अकेला रह गया, इसको 7 चाहिए, 7 का, इसका भी पेयर बन गया तो ये भी हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 32 का ए इज अ फाइनल आंसर। फिर आ गया नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose interior angle is 135 डिग्री, ठीक है। तो यार अगर आप इसे ध्यान से देखें, सही बोल रहा हूं मैं, कुछ गलती वलती तो नहीं कर रहा यहाँ पे, हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स वही अभी मैं कर रहा था, n-2 into 180, और रेगुलर पॉलीगन है, यहाँ पे क्या देखा रेगुलर, तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब 135 डिग्री के ही सारे एंगल्स होंगे, तो ये भी सम होगा। इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, आई थिंक ये आ जाना चाहिए, यहाँ से 8 आ जाना चाहिए इसका आंसर, मैं अगर कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, कुछ गलती वलती तो नहीं कर रहा मैं, पाई बाय 4 है ना, सही है। 8 आ रहा है, 6 आ रहा है इसका आंसर। अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए बच्चों एक बार, है ना। n-2 into 180 डिग्री है, मैंने कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी एक बार देख लीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। 5-2 into 180, ठीक है, ये तो नहीं 5, सॉरी, n-2 into 180 है, और n हमारा यहाँ पर हमें निकालना है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर n हो जाएगा 180, सही है, ठीक है। अगर आप देखो n into 180 और 135 into n, तो ये हो जाएगा n into 180 minus 135, एक तरफ ले आओ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, तो बिल्कुल सही लिखा है मैंने, 8 इज द आंसर। ए यहाँ पे गलत दे रखा है, इसका आंसर क्या होगा सी, इसका आंसर क्या होगा सी, 33 का होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस की बात हमें बता रही थी कि एक रोम्बस है, उसका एरिया हमें दे रखा है। अब हमें एक बात पता है रोम्बस के एरिया के लिए, क्या बात पता है हमें रोम्बस के एरिया के लिए, कि रोम्बस का जो एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाइज डायगोनल्स क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। मान लिया एक डायगोनल AC है और एक BD है, तो हाफ AC इंटू BD, पार्डन माई फिगर, तो हाफ 24 इंटू BD क्या होगा इसका एरिया होगा, ठीक है। तो यहां से यार आपका ये हो गया 12, ये हो गया 10, तो BD की वैल्यू 10 आ गई, मतलब एक डायगोनल, मैं फिर से बना रहा हूं इसकी फिगर, एक डायगोनल की लेंथ पूरी है 10, ठीक है, और दूसरे डायगोनल की जो पूरी लेंथ है वो है 24, तो आधी लेंथ कितनी होगी, आधी लेंथ होगी 5 और 12, और रोम्बस में 90 डिग्री पे होते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा √5² + 12², मतलब √169, मतलब 13 आ जाएगा भाई, 13 इज द आंसर, ठीक है। कुछ समझ में आया, ज्यादा जल्दी तो नहीं हुआ है ना। हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, अगर पूरी लेंथ 10 है तो आधी लेंथ 5-5 होगी, पूरी लेंथ अगर 24 है तो आधी लेंथ 12-12 होगी, और डायगोनल 90 पे होते हैं, तो पाइथागोरस से वाली लेंथ निकाल लेंगे ना यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक 4 डिजिट का नंबर है 4AB5, 55 से डिविजिबल, मतलब भाई 5 से भी डिविजिबल हो और 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 5 से तो है ही, लास्ट में 5 आ रहा है इसके, अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हम सबको पता है, ठीक है। तो अगर ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है, वैसे लास्ट में 0 आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 आ रहा है तो ठीक है, 11 से डिविजिबल है, तो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन डिजिट्स मस्ट बी 0 और 11, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है हमें, तो हम अगर यहां पर देखें ध्यान से, तो 4 + B - A + 5, ठीक है, सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट, इट मस्ट बी 0 और 11, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, B - A, और 4 - 5 कितना हो जाएगा यार, -1, तो ये या तो 0 होना चाहिए या ये क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, ठीक है ना, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो या तो B - A आपका 1 हो सकता है, या B - A आपका 12 हो सकता है, ठीक है। यही होगा ना यार, कोई गलती वलती तो नहीं कर रहे, B - A - 1 है ना, तो इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए भाई, B - A - 1 ही तो होगा, B - A - 1, तो 1 उधर जाएगा, 11 में ऐड ही होगा 12, तो इसका आंसर आना चाहिए हमारा सिंपल 1 आना चाहिए ना, इसका आंसर 1 ही हो सकता है, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो B - A की वैल्यू 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर
and a number obtained by reversing its digits is always divisible by, दुनिया का कोई भी 2 डिजिट का नंबर मान लिया xy है तो उसे कैसे लिख सकते हो 10x plus y। अब इसका रिवर्स कर दो डिजिट को तो क्या हो जाएगा 10y plus x। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें 10y plus x minus 10x plus y, अगर हम ये करें तो ये हमारा क्या आने वाला है 9y minus 9x। 9 से डिविजिबल आ रहा है भाई, है ना, 9 से डिविजिबल होगा 100%। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये बेसिक फंडा ये वाला जिसे मालूम है वही क्वेश्चन कर लेगा, फोड़ देगा। ठीक है, बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यार, है ना। तो ट्रेपीजियम की बात हो गई हमारे फिर से। ट्रेपीजियम का क्या बोला हुआ है भाई, एरिया बोला हुआ है 180। चलो एरिया की वैल्यू हो गई 180। एरिया क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 9, ठीक है। और वन ऑफ पैरेलल साइड मान लिया, एक पैरेलल साइड मान लिया x है, तो दूसरी बोला है कि उससे 6 सेंटीमीटर लंबी है, दूसरी x plus 6 होगी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये हो गया। सॉल्व कर लो यार, ये 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 40, 2x plus 6, तो यहां से 2x आ जाएगा, 40 minus 6 मतलब 34, x आ गया 17, एक 17 है, दूसरी उससे 6 ज्यादा 23 है। ठीक है, तो C आंसर है इसका। ठीक है यार, है ना, समझ में आ रहा है। 38 पे आ जाते हैं। एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का एरिया होता है हमारा x क्यूब, ठीक है, इज x, देन इट्स वॉल्यूम इज। अब यहाँ पे एरिया मतलब वो एरिया होता है, सॉरी सरफेस एरिया, सॉरी बहुत जल्दी हो रही है ना हमें। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हमें दिया हुआ है। अच्छा, सरफेस एरिया कितनी सरफेसेस होती है, 6 सरफेसेस होती हैं, और सबका एरिया क्या होता है a स्क्वायर। तो 6 सरफेसेस का एरिया 6a स्क्वायर, अगर साइड लेंथ a है तो ये x हो गया। तो यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई 6 का रूट। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, मतलब x डिवाइडेड बाई 6 का 1/2 की पावर 3। इट मींस x डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3/2। दिस इज अवर फाइनल आंसर, डी इज द आंसर। ठीक है, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे हम आ जाते हैं। 39 भाई हमारा सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि एक टेप रिकॉर्डर है जिसे A ने खरीदा 8000 में और B को बेच दिया। B को चलो जैसे भी बेचा, और B ने फिर C को बेच दिया, और C ने 20% का प्रॉफिट कमाया एंड ईच, अच्छा सबने 20% का प्रॉफिट कमाया। मतलब A ने जब B को बेचा तो 8000 प्लस 8000 का 20%, सही बात है, परसेंट मतलब पर 100। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो B ने C को कितने में, A ने B को कितने में बेचा होगा, 8000 प्लस, इसको सॉल्व करा, 8 दूनी 16, 1600 हो गया ना यार, यहाँ पे है ना, सही लिखा है ना। तो ये हो गया कुल मिला के 96 इतने का बेचा, और B ने C को कितने का बेचा होगा, 9600 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस इसका 20%। तो ऑब्वियसली जो इसका 20% होगा 9600 का, अब हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जो 9600 का 20% होगा वो ऑब्वियसली 8000 के 20% से ज्यादा है, तो इसलिए A ने सिर्फ कितने का प्रॉफिट कमाया, 1600 का। B ने कितने का प्रॉफिट कमाया होगा, ज्यादा का। ठीक है, ज्यादा का ही कमाया होगा। तो A अर्न्स लेस प्रॉफिट देन B, ये हम वैसे ही बोल सकते हैं, बिकॉज 9600 का 20% ज्यादा होगा। ठीक है, आप इसे निकाल सकते हो 960 इंटू 2 करके। ठीक है, तो ये 0, चलो मैं निकालता हूँ, 9 18 1920 रुपए का प्रॉफिट होगा C को। ठीक है, B को सॉरी, है ना। तो B का ज्यादा प्रॉफिट है A से। बहुत ही सिंपल है, पर मैंने टाइम लगा दिया है ना। तो अब ऐसे नहीं बोलना है आपने आपने बोलना नहीं सर आपने सही टाइम पे किया। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो इन सबको। ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6, ये हो जाएगा 625 इंटू 10 टू दी पावर -3। पहले सबको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पर यार, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, है ना, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -10 ये आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, जस्ट और कैलकुलेशन है, ऐसे कर लेना। ठीक है, ए इज द आंसर। तो थैंक यू सो मच, हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम टू। Hello, what's up, everybody? Welcome to the GoPreps live online coaching. This is me, Avi Arora, your maths teacher, and today I'm here to discuss the aptitude paper. So, guys, we have reached to our
final slot, that is slot 3 of this GTSC. And here we have, हमें यहाँ पे फर्स्ट 20 क्वेश्चंस वो साइंस के थे, फिर नेक्स्ट 20 वो फॉर मैथ्स, और लास्ट के आखिरी 10 क्वेश्चंस हैं एप्टीट्यूड के. सो आई होप सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया हो. एंड विद दैट आई एम हियर टुडे to discuss the 10 questions of aptitude section. Let's have a look at those questions, and let's quickly get at the solution of those questions. चलो, तो first question, 41st question आपके slot 3 GTSC 4 का है कि one of the number is missing, so we need to find that missing number. तो pattern क्या है? 18 से 24 that's plus 6, 24 से 21 that's minus 3, फिर plus 6 minus 3, 27 के बाद minus 3 होगा, that is 24 अगेन. इसका बच्चा आंसर हो जाएगा C 24. आगे बढ़ते हैं. 4 words are given below, out of which 3 are alike in some manner and 4th is different. Obviously अगर आप देखो सर्कल एलिप्स और सर्कल एलिप्स और स्फीयर जो है ये सारे कर्व्ड शेप्स हैं, पर क्यूब एक कर्व नहीं है, उसमें कोई कर्व नहीं होता, उसमें सारे के सारे साइड्स होती हैं. अलग क्या है इन सब में? D is different. नेक्स्ट अगर बात करूं, फ्राइडे अगर सितंबर को है और 2001 का नेक्स्ट 15 सितंबर में क्या आएगा, तो इसके लिए बच्चों को ये देखना पड़ेगा कि फेब्रुअरी, वी नीड टू चेक कि फेब्रुअरी का जो महीना है वो लीप ईयर है, लीप ईयर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो फेब्रुअरी 2001 इट्स नॉट अ लीप ईयर, इसमें 28 डेज ही होते हैं, नॉट लीप ईयर. तो यहाँ से ये पता लग गया कि देयर आर 365 डेज, 2 दिन जो हमको दिखे हैं 15 सितंबर 2000 एंड 15 सितंबर 2001, इनके बीच में 365 डेज का गैप है. दैट मीन्स 1 ऑड डे. जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1 ऑड डे. मतलब क्या है, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो नेक्स्ट डे कौन सा आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी सैटरडे. तो इसका आंसर आ गया C सैटरडे. ठीक है. अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स if the digits interchange places and the new number is added. ठीक है, मतलब एक नंबर दिया हुआ है, लेट्स से उसकी 10th डिजिट A है और यूनिट डिजिट B है, तो नंबर विल बी 10A प्लस B. अब उसने कहा डिजिट्स इंटरचेंज कर दो, तो नया नंबर क्या आ गया? 10B प्लस A. इनको जब आप ऐड करोगे तो 10A प्लस A दैट विल बी 11A और 10B प्लस B दैट विल बी 11B, which can be written as 11 times A plus B. Now clearly visible this is divisible by 11, so इनका sum is divisible by 11. next figure in which the question, ठीक है, मतलब कि आपको next figure बताना है, एक सीरीज चल रही है यहाँ पे. तो यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास 3 तरह के पैटर्न्स हैं, 3 तरह के सिंबल्स हैं. पहले अगर मैं बात करूँ उस एरो की, तो आप देखोगे बच्चों कि एरो पहले इस डायरेक्शन में, फिर अगली बार नीचे की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. दिस इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो पहले यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर एक एक स्पेस आगे बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली अगली बार इस कॉर्नर पे आएगा. सो इधर इट्स बी और इट्स सी. ठीक है, उसका डायरेक्शन भी ऑब्वियसली आउटवर्ड्स ही है, इनवर्ड्स तो है नहीं. इधर इट्स बी और इट्स सी. तो डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस है ये ब्लैक वाले बॉक्स का, इसका डिफरेंस है. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ब्लैक बॉक्स को अगर सॉल्व करना है तो देखो यार, पहले लेफ्ट ऊपर वाले कॉर्नर, फिर राइट ऊपर वाला, फिर नीचे राइट, फिर लेफ्ट, मतलब कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. नेक्स्ट आएगा लेफ्ट ऊपर वाला, लेफ्ट टॉप कॉर्नर, दैट मींस आंसर इज सी. तो अपना आंसर आ गया यहाँ पे सी. नेक्स्ट है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, कितने स्क्वायर्स हैं. तो यार इसके अंदर हमको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना होगा. तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम पहले स्मॉल स्क्वायर्स देखेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये स्मॉल वाले कितने हो गए? 11 और ये 12 और 13. ठीक है. अब इसके बाद मैं ये वाले अगर स्क्वायर्स काउंट करूं तो ऐसे मेरे पास 4 स्क्वायर्स हैं, ऐसे 4 है, 13 एंड 4 दैट 17. ठीक है, तो अभी तक हमारे पास 17 आ चुके हैं. इसके बाद अगर मैं ये वाले स्क्वायर्स काउंट करूं, बड़े वाले, तो ऐसे कितने अपने पास 4 और आ जाएंगे. 17 और 3, सो फार वी हैव गॉट 17 और 4 वी हैव गॉट 21. अब एक पूरा वाला, पूरा द होल स्क्वायर दैट इज 22, और एक फिर ये वाला 23. इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके पास इस ये जो इनर है इसके अंदर फर्दर 4 और है. 23 प्लस 4 दैट्स 27. सो इसका आंसर हो जाएगा D 27.
Next, a hand clock. Clock is placed so that 12 noon. It's in minute hand points towards north east. ठीक है, मतलब कि यार जब 12 बज रहे तो ऑब्वियसली दोनों ही हैंड्स मिनट हैंड ले लो चाहे आप आवर हैंड ले लो, दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो है सेम डायरेक्शन, और वो किस डायरेक्शन में है? दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट. अब वी नीड टू फाइंड एट 1:30 पे आवर एंड एग्जैक्टली कहाँ होगा? ये 1 है, अगर दिस इज 1 दिस इज 2 तो इनके बीच में होगा, इनके बीच में आ गया आवर एंड, तो हमें ये एंगल निकालना है. तो यार वी नो दैट पूरा 12 पार्ट्स पे बांटा हुआ है 360 डिग्री. एक एंगल कितना आ जाएगा? 30. दैट मीन्स ये एंगल कितना है? 30 और 1.5 है तो 45 डिग्री हो गया. तो हमें 45 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट से राइट जाना है. दैट विल बी व्हाट? नॉर्थ ईस्ट से अगर आप थोड़ा राइट जाओगे तो आपको ईस्ट मिल जाएगा. तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ईस्ट. तो न्यू डायरेक्शन कितनी आ गई हमारी? ईस्ट आ जाएगी. आगे बढ़ते हैं. अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ, ठीक है. नेक्स्ट एंड देन टर्न्स राइट, तो उसके लिए राइट ये साइड हो जाएगी. आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स लेफ्ट, तो ये 5 है, ये 3 है. देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड अगेन 5. नाउ किस डायरेक्शन में है? तो अगर आदमी यहाँ था तो इसके बाद ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया. तो ये कौन सी होगी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन है. इसका आंसर आ जाएगा डी, साउथ वेस्ट. नेक्स्ट है कि फर्स्ट हाफ भी हमने रिवर्स कर दिया और नेक्स्ट हाफ भी रिवर्स कर दिए. तो बताओ कि लेटर 7th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब कि आपको 12 प्लस 7 दैट्स 19 चाहिए. तो ऑब्वियसली पहले 13 तो ये हो गए, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19. इसका आंसर आ जाएगा बी यू. बी यू इज द 19th लेटर. लास्ट क्वेश्चन है कि एक फिगर है जिसको फोल्ड किया है कुछ तरह से, तो बताओ कि यार वो ओपन करने पे क्या था? वो ओपन करने पे क्या था? मतलब कि जब फोल्ड किया और उसके बाद उसको यहाँ पर 2 ऐसे करके होल्स कर दिए, तो ओपन करने पे क्या होगा? ऑब्वियसली हमको ये सिमिलर फिगर हर तरफ डालने पड़ेंगे. तो इस तरह का इसकी मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट द सेंटर. तो एक यहाँ पर आ जाएगा ऐसे करके होल, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ऐसे करके होल, और एक फिर यहाँ पर आ जाएगा ऐसे करके होल. आई थिंक द आंसर विल बी 4. इसका आंसर आ जाएगा डी. So that's all in the aptitude section. I believe that you must have found the questions very easy. Do let me know in the comment section कि बच्चों पेपर कैसा लगा आपको. And with that, we are happy that you all have participated so well in this GTSE test, and we are looking forward to declare the results very soon. And good luck for all the guys जिन्होंने पेपर दिया है. Good luck. And that's all. And if you have any queries regarding the GTSE or any of the any queries regarding GoPrep classes, courses, so you can reach out to us on the given number on the screen. So that's my time with you all. This is me, Abhi Arora, signing off. Bye bye everyone. Take care.